44-year-old Bharatiya Janata Party never fails to surprise, whether it is about its policies or its politics. And this time too, when the Saffron Party was appointing their new president or their new working president, they pulled a rabbit out of the hat. The name of a man who nobody would have thought possible, and perhaps 90% of the country wouldn't have even known about him. 45-year-old Bihar minister and member of the RSS, Nitin Nabin. He was welcomed to the BJP headquarters today as the party's working president. BJP old guards, Amit Shah, Dharmendra Pradhan, the current president, JP Nadda, all of them mark this generational shift in the party with much fanfare. The choice for the party's top post left everyone surprised, but this is not the first time. Earlier, there were chief ministers who nobody would have guessed would occupy the top post. That list is endless. It's Bhajan Lal Sharma, Nayab Singh Saini, Mohan Yadav in Madhya Pradesh, Rekha Gupta as Delhi chief minister. But BJP's subtle art of picking surprises has now reached the top post, the post of BJP president. The question is, what really is the thinking? What is the game plan? How does the BJP expect that a 45-year-old is going to be able to pull through his party at a time when you've got a very crucial phase ahead? You've got 4 assembly elections just next year and only 4 years left for the big fight of 2029. बहुत अभिनंदन उनका, बहुत ही योग्य हैं, समर्पित हैं, संगठन करता हैं। उम्र है 45 साल की, लेकिन बहुत बड़ा अनुभव, 5 बार विधायक हैं, मंत्री रहे, कई जगह प्रभारी रहे, उनका बहुत अभिनंदन। There's a clear lack of process in the recent announcement of the BJP for their national working president. And there's a clear lack of meaningful engagement and dialogue with their party workers. This is in complete opposite of how the Congress party has chosen its president. भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों में एक नई प्रथा राष्ट्रीय पर्ची योजना शुरू हुई है, जिसमें मुख्यमंत्रियों के नाम पर्ची से निकाले जाते हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी पर्ची से निकाला गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन था नहीं, सिलेक्शन था। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से अंदरूनी मामला है। वो किसको अध्यक्ष बनाती हैं, किसको हटाती हैं, किसको रखती हैं, किसका कार्यकाल बढ़ाते हैं। उनको इतने साल एक पद दिया लेकिन कोई काम नहीं दिया। फिर भी नड्डा जी अब जाते जाते अपना बताना चाहिए उनको कि उनको काम कितना दिया, कितना नहीं दिया, गृह मंत्री ने रिमोट कंट्रोल कितनी बार इनके हाथ में दिया, ये सब उनको बताना चाहिए। All right, so multiple charges about this election as well. Why did this not happen through an election? Why was this done through selection? Is this not a case of Parivarvad? Let's try and analyze what really is the master stroke here. Harshvardhan Tripathi continues with us. We are joined by Rashid Kidwai, senior journalist. ये बताइए Harshvardhan जी, Congress is justified in saying कि भाई इलेक्शन कहाँ हुआ? आप तो इतना बोल रहे थे कि भाई खड़गे जी को ऐसे चुन लिया आपने, प्रोसेस नहीं फॉलो की, रिग्ड इलेक्शन था। अब अचानक से नितिन नवीन पर्ची वाले अध्यक्ष कैसे बन गए? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर सहमति से चुनाव होता है। ये सही है कि नीचे से इलेक्शन होता है और भारतीय जनता पार्टी जितना नीचे तक जाकर बहुत अच्छे से चुनाव कराती है वो शायद कोई पार्टी करती हो। मैं कम्युनिस्टों का नहीं जानता हूं, इसलिए उनका आइडिया नहीं। कांग्रेस में तो खैर चुनाव ना होता नहीं है। इस बार दबाव में चुनाव हुआ और उसके बाद से शशि थरूर की क्या हालत है, क्योंकि वो गांधी विरोधी कह लिए गए कि अब ये तो गांधी परिवार के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी चुनाव उन्होंने कराया। अच्छा है कि चुनाव कर लिया और एक अध्यक्ष चुना, लेकिन मूल बात समझिए। और ये मैं अब जिसको कहते हैं ना कि जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, पिछले 8 महीने से 45 से 50 साल के 20 नेताओं पर पार्टी ने मंथन किया है। 20 नेताओं पर उनके बारे में हर तरह की रिपोर्ट ली गई है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, उनका अपने सहयोगियों के साथ कैसा कामकाज, कैसा व्यवहार रहा है, ये बाकायदा पूछा गया। और उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर होगा। ये चौंकाने वाला था, क्योंकि सब ये समझ रहे थे। नितिन नवीन को लग रहा था कि वो तो मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, तो मैं इस बार मंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा। ऐसे जो दूसरे नाम हैं, ऐसे 20 नाम थे, उनमें से 5 नामों को सिलेक्ट किया गया। और आखिर में कास्ट न्यूट्रल बीजेपी बिहार में जिस तरह की अपनी एम्बिशंस रखती है उसको लेकर, और देश में जिसको मैं लोकसभा चुनाव के समय से कह रहा था, पीढ़ीगत परिवर्तन पर तो जो भारतीय जनता पार्टी और संघ काम कर रही है उसका ये प्रमाण है।
और फिर इसको समझिए, दो स्थितियों में पार्टियां ऐसे निर्णय लेती हैं। एक, जब वो खराब हाल में हो, जब 2009 में नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से उठाकर नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया, तब भी कोई नितिन गडकरी को जानता नहीं था, वो पथ निर्माण मंत्री थे, वहां महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, यहां नहीं कोई जानता था। नितिन नवीन को भी बिहार में 2 बार के वो मंत्री हो चुके हैं, 5 बार के विधायक हो चुके हैं, और कैडर वही है। उनके पिताजी जब थे विधायक तब थे, वो तो 2006 में उनका निधन हुआ, उपचुनाव में वो जीते थे, लेकिन एबीवीपी से करियर शुरू हुआ, एक तरह से कहेंगे राजनीतिक तौर पर उन्होंने काम किया। और ये संदेश भी है, जरा आप इसकी मैसेजिंग समझिए। 45 to 55 जो इतनी बड़ी पार्टी कहती है, उस आयु वर्ग के नेताओं के मन में क्या इच्छा होगी कि हम भी कभी किसी पद पर जा सकते हैं। ये आप जरा सोचिए। नहीं, पर जो 55 से 75 है उनके मन में जो इच्छा है उसका कौन सोचेगा? 55 to 75 भी तो बहुत है ना। ये उनके दिल के अरमा तो आंसुओं में बह गए। नहीं, बह गए। और उसमें समझिए, पार्टी कोई भी वही चलती है जो टाइम के साथ चलती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के रहते हुए 55 to 70 वालों की बहुत जरूरत है क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई जरूरत है क्या? और आपने 83 साल के खरगे जी को प्रतीकात्मक बना तो दिया, क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो? ओके, राशिद किदवई, देना जो राहुल गांधी। Rashid Kidwai, the comparison is stark. On the one hand, you've got a Congress party where a former MLA wrote a letter to Sonia ji and said, Kharge ji is not really up to the mark, maybe we need younger blood, and he was promptly suspended from the party. And on the other, you have got this surprise candidate, this 45-year-old who's been parachuted to the top post. What does it say about both parties? Padmaja, there is a Urdu couplet कि जब खुदा हुस्न देता है नजाकत आई जाती है. The BJP is politically doing very well. So whatever they do is a master stroke. When Rahul Gandhi at the age of 48 becomes, Congress president, 87th president of the Congress, he is mocked at and he's talked about his naivety, his inexperience, his inability to lead. Issue is that in India, there is no concept of internal democracy, whether it is the Congress or the Communist or Bahujan Samaj Party or the BJP. There is no concept of consensus. Harshvardhan ji is a very dear friend of mine. There is no concept of consensus in democracy. It's an antithesis of democracy. Democracy is about numbers. Who has got what? Shashi Tharoor got 10% of votes. So he has shown that he's got 10% vote and Mallikarjun Kharge got some 89% of votes. So this is about numbers. So this is not a thing. We must remember, Padmaja, when the Congress had good time, how many times Jawaharlal Nehru was the Congress president? 6 years. He was 17 years, he was a prime minister. Indira Gandhi was a 16-year prime minister. Indira Gandhi was just about 6 to 7 years as Congress president. So it is, and Sonia Gandhi was there for, 18, 20 years as Congress president. So this is not a thing. It is about political leadership. I wish Mr. Nitin Naveen all the best, but he's a dynast. He comes from, as Harshvardhan ji, when Rahul Gandhi became president, everyone said, ये परिवारवाद. अब नितिन नवीन भी तो परिवार से ही आते हैं, उनके परिवारवाद का क्या होगा? देखिए, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि रशीद भाई इस पर ये परिवारवाद कहेंगे। ये ठीक है, उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, और जब उनका निधन हुआ उसके बाद नितिन नवीन आए हैं। क्या नितिन नवीन की ये स्थिति थी कि वो बीजेपी में भी कुछ बिहार में कमांड दे पाते, कुछ डिक्टेट कर पाते? बीजेपी में तो यही कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा होगा, विधायक का बेटा विधायक होगा, मंत्री का बेटा मंत्री होगा। ऐसा बीजेपी में नहीं होता है। पर आपने भाई विधायक के बेटे को ही विधायकी दी ना। पद्मजा जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई आप कहें कि ये इनके पिता राजनीति में थे इसलिए नहीं होगा। लेकिन क्या राहुल गांधी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे तय करते हैं? क्या प्रियंका जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी अपनी तय करती हैं? क्या तेजस्वी, अखिलेश, केसीआर, शरद पवार, नाम लेते चले जाइए। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी आई। आपने शुरू में दिखाया वो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये तो चुनाव ही नहीं हुआ। जिस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन 3 लाइन का बदल के और जो 3 साल का संयोजक था वो अब आजीवन हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव कुछ पता चलता है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव पार्टियों के भीतर होता है। और अगर डेमोक्रेसी की बात है तो फिर तो सोनिया गांधी जी के समय में डेमोक्रेसी नहीं थी, इसका मतलब, क्योंकि वो तो इलेक्शन नहीं होता था। अभी तो ठीक है, खरगे जी और शशि थरूर के बीच में हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, संघ और बीजेपी ने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि कोशिश करके
तैयारी करके अगले 20 साल 30 साल की कहानी लिखनी शुरू की है। कांग्रेस को समझ में आए तो बेहतर। नहीं, पर कांग्रेस भी तो 20 साल की तैयारी कर रही है। अभी वो स्पोक्सपर्सन के लिए टैलेंट हंट करा रहे हैं। पहले यूथ कांग्रेस में इंटरनल इलेक्शन करवाया था राहुल गांधी ने। देखिए यूथ वो कांग्रेस फेल हो जाता है वो अलग बात है, बट कोशिश तो वो भी कर रहे हैं ना। अब ऐसा कहते हैं चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। अभी नितिन नवीन बन गए, सब लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। हो सकता है कल को ये टैलेंट हंट को भी लोग मास्टर स्ट्रोक कहें अगर कांग्रेस सत्ता में हुई तो। नहीं पद्मजा जी, मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये, एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल। मैं आपको इसीलिए नितिन गडकरी का याद दिला रहा हूं। वो उतने सफल अध्यक्ष नहीं रहे, आउट हो गए। अगर वो सफल हो गए होते 2009 में तो शायद पार्टी दूसरी तरफ जाती। क्या राहुल गांधी के असफल होने से पार्टी ऐसी जा रही? नहीं जा रही। और यूथ कांग्रेस वाला मैं आपको बताता हूं, बड़ा अच्छा काम किया था राहुल जी ने, लेकिन हुआ क्या कि सब जगह जो बड़े परिवारों के बच्चे थे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां और बुलेट और उन सबको लेकर सब जगह कब्जा कर लिया युवक कांग्रेस। जो राहुल गांधी का जो प्रयोग था वो फेल हो गया। और मैं फिर कह रहा हूं, ये नितिन नवीन सफल होंगे या असफल होंगे अब वो आगे दिखेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के कैडर के व्यक्ति को उठाकर वहां बिठाया है। यह बड़ी बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोग इसको देख रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा ना, बीजेपी वर्कर के मन में, कि हम भी कभी इस जगह पहुंच सकते हैं। डायनास्ट पार्टीज में यह पॉसिबल नहीं है। खड़गे जी को भी भाषण जाते हुए बोलने जा रहे होंगे, तब तक कहा जाएगा नहीं नहीं राहुल जी का मन हो गया थोड़ा बैठ जाइए, तो बैठ जाएंगे। ऐसे ही होता है। ओके, 45-year-olds के मन में तो पता नहीं क्या आ रहा होगा, बट द एल्डरली, you know, the people who were hoping that they wouldn't be put in the मार्गदर्शक मंडल, now they will have to say namaste to a 45-year-old अध्यक्ष जी। उनके मन में क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। For the time being, interesting choice, a young politician, a Kayasth coming from Bihar, elevated to the post of national president of the BJP, working president for now, perhaps by the beginning of next year after Kharmas is over, maybe he will be replacing JP Nadda as the BJP president. We'll wait and see what happens in the interim. For the time being, both gentlemen, thank you very much for joining me here. And as always, remember, on every story that matters, the buck stops here.